Namaste Gurukulians, how are you beta? Fit and fine? Beta, in the last video I told you about Newton's third law of motion, and also I told you the definition of law of conservation of linear momentum. Today I will prove this law of conservation of linear momentum. I will prove it, and I am telling you one thing, in proving these laws, इनको प्रूव करने के लिए बेटा I have to use Newton's second law of motion and Newton's third law of motion, and after that we will discuss one or two numerical of this topic. Okay, then our chapter will be completed. Okay, law conservation of linear momentum. I have told you the definition of law of conservation of linear momentum in the last video. According to this law, I have told you, for an isolated system क्या होता है कि इस रूम में कोई बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, उनके दो या तीन बॉडीज़ को फेंक के चला जाऊं और कहीं बाहर से फोर्स ना लगाओ, फ्रिक्शन भी ना लगाओ, वो बॉडी आपस में टकराएं तो टकराएं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो लगाएं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगना चाहिए। ऐसे सिस्टम के लिए पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी कि वो मैंने दो बॉडी फेंकी थी ना, उनका टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उनका आंसर हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व, यानी कि जितना शुरू में है मोमेंटम उतना ही लास्ट में रहेगा। मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट कंडीशन इज देयर, सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड, मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स बी ऑन द बॉल्स। ओके, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, वो आपस में इंटरेक्ट करें तो करें। क्लियर? सो आई एम टेलिंग यू डेफिनेशन वन मोर टाइम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और मीन्स कांस्टेंट। क्लियर? मतलब कि जितना पहले मोमेंटम है उतना ही टोटल बाद में रहेगा। टोटल मोमेंटम दोनों का मिला के टोटल मोमेंटम जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाउ बेटा वी विल प्रूव दिस लॉ। Okay, proof. So consider two balls are in the isolated system. Clear? Consider two balls are moving in isolated system. In isolated system, two balls are moving in isolated system. Clear? Two balls are moving. Now figure, see the figure. Suppose this ball is A and this ball is B. B is moving in this direction with speed VB and A is moving in this direction with speed ABA. Now you will say that, sir, why are you talking about speed? Talk about velocity, because momentum depends upon वेलोसिटी। बेटा जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो फिक्स डायरेक्शन है तो हम उसको स्पीड भी कह सकते हैं। ठीक है, तब हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या कह देते हैं? स्पीड कह देते हैं। इट इज़ मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता फिर। क्लियर? तो दिस इज ए एंड बी। सपोज वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ए की स्पीड जो है या ए की वेलोसिटी जो बी से क्या है बेटा? ज़्यादा है, मान लेते हैं। इफ़ स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, देन they will confirmed collide each other. Where? Suppose here they collide each other. It is the picture of future of this situation. Okay, this situation is the future of this situation. They will collide each other, and after colliding, suppose this velocity is not v, this is u means initial velocity, this is ub. Okay, and ub UA. Clear? U means initial. Okay, U means initial, V means final. Clear? Okay, these are the initial speeds of A and B in this way, and they collide here. After collision, A moves with speed VA. Now this is V, and B moves with speed VB. Okay. Initially UA was greater than UB,
so that they may strike to each other, they may collide to each other, and after collision, here collision time is there, and after collision A moves with speed VA and B moves with speed VB. Clear? Okay beta, final. Now beta, now tell me here, on the time of collision A applies force on B and B applies force on A. टच में आ गए दोनों, तो फोर्स लगाएंगे, बिकॉज बेटा आई एम स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, बेटा माई वेट इज द फोर्स ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन मी एज द नॉर्मल रिएक्शन. ओके, जब दो बॉडी टच में होती हैं तो एक बॉडी ये भी इस पर फोर्स लगाती है, ये भी इस पर फोर्स लगाती है. ओके, इट मीन्स सपोज ए जो है ना, ए वो बॉडी बी के ऊपर इधर फोर्स लगाएगी, इधर. ओके, क्योंकि ए बॉडी मूव कर रही थी, एंड व्हेन इट वाज मूविंग देन इट विल कंपेल बॉडी बी टू मूव. बेटा इट वाज मूविंग, ए वाज मूविंग एंड इट विल कंपेल इट टू मूव. ये कहेगी और तेज चलो, और जो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना, वो उसको रोकने का काम करेगी, क्योंकि ये इसके लिए, ये बेटा ये बॉडी इसके लिए क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है. इसके लिए क्या है, इसको रोकने का काम कर रही है, क्योंकि ये रास्ते में आ गई. तो ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी उस डायरेक्शन में, and this body applies the force on this in this direction. So this force is called FAB, and FAB means force applied by A on B, force applied by A on B in this direction, and this is FBA, force applied by B on A. Clear? Final? Clear? Let FAB is force by A on B and FBA by B on A. दो बातें मान ली आपने, एक बात और मान लेते हैं. क्या बेटा? Let this collision takes place for time t. Let collision is for time t. Now better tell me using second law of motion. Now better tell me using second law of motion. Using second law of motion. Listen. Better tell me what will be the value of FAB using second law of motion. Using second law of motion, better tell me what will be the value of FAB. FAB, better listen. According to Newton's second law of motion, rate of change of linear momentum of a body is equal to or is directly proportional to force applied on it. बेटा फोर्स किस पे लगा हुआ है? FAB, B पे लगा हुआ है, A B पे लगा रहा है. FAB is the force by A on B, B पे लगा हुआ है फोर्स. तो बेटा मोमेंटम किसका चेंज होगा? B का, क्योंकि फोर्स B पे लगा हुआ है. ओके, तो बेटा मोमेंटम में कितना चेंज आएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम इज देयर MBVB, because momentum is the product of mass and velocity, and initial momentum is MBUB. MBVB minus MBUB. आप कहेंगे सर ने BB क्यों लिखा? Because बेटा force is applied on B and momentum of B will change. Final minus initial, and M is the MB is the, its mass is suppose MB and its mass is suppose MA. Clear? Final. And force is equal to the, force is not equal to change in momentum, force is equal to rate of change of momentum upon time t, because collision जो हुआ है ना वो कितना टाइम के लिए हुआ है? t टाइम के लिए हुआ है. जो फोर्सेज लगे हैं ना वो t टाइम के लिए लगे हैं. मीन्स फोर्स इज इक्वल टू रेट by divided by t, rate of change in momentum, as we have discussed in the mathematical formulation of Newton's second law of motion. FAB is equal to this. Clear? But now tell me, who will tell me what will be the value of FBA? What will be the value of FBA? Now force is applicable on A, so momentum of A will change. Now we will replace B by A here, and it will be MAVA minus MAUA upon
time, because final momentum of A is MAVA and initial is MAUA. Final minus initial change in rate. बेटा rate क्या होता है? Divided by time, rate of change on momentum. Clear? So we have used Newton's second law of motion in both cases. Now बेटा we will use third law of motion. Third law of motion क्या कहता है? These both forces are equal and opposite. बेटा मैं किसी बॉडी के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा हूँ वो बॉडी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स वापस लगाएगी ना. These forces are equal and opposite. So we can write FAB is equal to FBA. बेटा till here I have used Newton's second law of motion. Now I will use Newton's third law of motion, because in this topic Newton's second law of motion is used and Newton's third law of motion is also used. Clear? Now FAB is equal to FBA. Is it right? One problem is there. Both forces are equal but opposite in direction, and you know forces are the vector quantities. It means minus sign will be here because negative sign shows that both forces are opposite. इसका मतलब ये होता है बेटा, अगर ये माइनस क्यों आया? इफ दिस फोर्स इज 5 न्यूटन देन यू नो दिस फोर्स विल बी माइनस 5 न्यूटन. दोनों इक्वल नहीं है, एक नेगेटिव साइन आ गया. मीन्स एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए. क्लियर? नाउ बेटा सी, इफ दिस इज 5 न्यूटन दिस इज माइनस 5, तो मैं इक्वल साइन करके क्या करूंगा? 5 न्यूटन इज इक्वल टू I have to take minus sign one more time, then both will be equal. It means minus will be here. Now beta do one thing. Now put the value of FAB from here and FBA from here in this equation. Suppose this is equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. Then you will say put the value of equation number 1, put 2 in 3. या आप ये कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 and 3, और यू कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ए बी एंड एफ बी ए इन दिस इक्वेशन. देन बेटा व्हाट विल यू सी? लिसन बेटा, व्हाट विल यू सी? here I should written, here I should write. Listen, what is the value of f a b? Listen, wait. What is the value of f a b? m b v b minus MBUB upon time. What is the value of FAB? This is the value. Is equal to, what is the value of minus sign is there? FBA. This is the value. MAVA minus MAUA upon time. Time is cancelled by time. Take minus sign inside. It will be MBVB minus MBUB, minus sign will go inside, then it will be minus MAVA plus MAUA. Now beta take U on one side and V on one side, then we will get MAVA plus MBVB is equal to MAUA plus MBUB. बेटा मैंने U वाले एक तरफ क्यों लिए, V वाले एक तरफ क्यों लिए? मीन्स इट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. बेटा व्हाट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन? MAUA plus MBUB. And what is the total momentum after collision? MAVA plus MBVB. Both are equal. And after it you can write this is total momentum before collision and it is total momentum after collision. Both are exactly the same. And in this topic, before making the figure, what you have to write? Before making the figure, consider two bodies A and B of masses MA and MB respectively. Body A is moving with velocity UA and it with UB. Suppose UA is greater than UB, मान लेते हैं. After collision, their velocities become VA and VB respectively. Okay. और फिर फिगर बनाने के बाद
बेटा लिसन, कंसीडर FAB is the force, FAB is the force by A on B and FBA is the force by B on A. बेटा जो B है ना, इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है, और लेकिन B के लिए A क्या है, A इसको पुश करेगा, मीन्स A will apply force on B in this side and B will apply force on body A in this side. So FAB force by A on B in this side and FBA in this side, both are equal and opposite. Okay, now listen, applying Newton's second law of motion, FAB means force on B, so momentum of B will change, final minus initial means MBVB minus MBUB upon time. But why upon time is there? Rate of change, rate means upon time. FBA, force on BA is there, force on A, so whose momentum will change? Of A. Final is MAUA, initial is MAUA, MAVA minus MAUA upon T. So 2 times we have used Newton's second law of motion, and now we will use Newton's third law of motion. Both forces are equal but opposite, so minus will be there. Put the value of FAB and FBA here. What is the value of FAB? This, put here, is equal to minus sign. Put the value of FBA here. T is cancelled by T. Take minus sign inside. Take U on one side. Take V on one side. But what is this? MAUA plus MBUB. Total initial momentum. What is MAVA plus MBVB? Total final momentum. और बेटा ये सिस्टम आइसोलेटेड है। पूरे क्वेश्चन में हमने कहाँ पे जिक्र किया ये आइसोलेटेड है? कहाँ पे यूज़ किया हमने केवल 2 ही फोर्स लिए हैं, जो इसने इसके ऊपर लगाया और इसने इसके ऊपर, कोई बाहर से फोर्स तो नहीं लिया ना हमने। इट मीन्स द सिस्टम इज शुड बी आइसोलेटेड। इफ सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड बेटा, देन टोटल लीनियर मोमेंटम कैन नेवर बी कॉन्स्टेंट। क्लियर बेटा? सो बेटा मैनी क्वेश्चंस आर देयर विच आर बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस भी क्वेश्चन में बेटा 2 ऑब्जेक्ट हो ना, आपको ये फॉर्मूला लगाना है सीधा। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे, मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन इज देयर, फॉर्मूला इज दिस, MAUA plus MBVB is equal to MAUA plus MBUB. In its total initial momentum is equal to total final momentum. MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB. Now formula is there. MAUA plus MBUB is equal to MAVA plus MBVB. Clear? Question is there. Question on this formula. आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाला फॉर्मूला लगाना है? इसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे और आपको मैं बताऊंगा आपको पता कैसे लगेगा। ए बॉय ऑफ मास, ए बॉय ऑफ मास 25 kg running with speed 3 meter per second jumps on a cart, of mass 10 kg, stationary cart, stationary, I'm telling you the meaning. After that they move together. What will be speed of them together? Beta, question is there. A boy of mass 25 kg running with speed 3 meter per second. एक बच्चा दौड़ रहा है, आगे एक कार्ट पड़ा है। कार्ट मीन्स
छोटे कुछ खिलौना पड़ा है, बड़ा खिलौना जिस पे बच्चा जंप कर सकता है, बैठ सकता है। जंप्स ऑन अ स्टेशनरी कार्ट, कार्ट रुका हुआ है, उसके ऊपर बच्चे ने भागते भागते क्या कर दिया बेटा, जंप कर दिया। अब जंप कर दिया तो क्या होगा, वो दोनों अब इकट्ठे चलेंगे ना। कार्ट ऑफ मास 10 kg, आफ्टर दैट दे मूव टुगेदर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ देम टुगेदर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ देम टुगेदर। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ आपको ये फॉर्मूला कब लगाना है, आपको पता कैसे चलेगा, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। तो अब से पहले जितने भी न्यूमेरिकल हुए आपको आसानी से पता चल जाता है, इसमें कैसे पता चलेगा बेटा, लिसन, 2 bodies आर देयर, बॉय एंड कार्ट, ठीक है। और एक बार एक्शन हुआ, कौन सा एक्शन हुआ, जंप किया, वो जंप एक्शन हो गया। एक तो सिचुएशन होगी जंप से पहले, एक सिचुएशन होगी जंप के बाद, दो अलग सिचुएशन होगी ना, जंप से पहले, जंप से बाद। जैसे पिछले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, 2 balls वर कमिंग कोलाइड, तो वहाँ पे एक्शन कौन था, कोलिजन। एक सिचुएशन कोलिजन से पहले थी, एक मोमेंटम कोलिजन पहले, एक मोमेंटम कोलिजन के बाद, दोनों सेम आए थे ना। ऐसे बेटा यहाँ पे कौन है, जंप्स, एक्शन कौन हुआ, जंप, और बॉडी कितनी है, 2, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। नाउ बेटा टेल मी, हियर वी विल यूज ए एंड बी, 2 bodies आर देयर, और हमारे केस में दो बॉडी कौन सी है, बॉय एंड कार्ट। टेक ए एज बॉय, बी एज कार्ट। नाउ टेल मी बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम ए, इट इज 25 kg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी, 10 kg। नाउ टेल मी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू ए, UA, speed of boy 3 meter per second. What is the value of this is UA, sorry, UA because initial है ये 3 meter per second. What is the value of UB? कार्ट की स्पीड कितनी है बेटा, पहले जंप करने से पहले 0। ओके, नाउ बेटा एक बात देखें, जब बच्चा उसके अंदर जंप कर गया, जंप करने के बाद दोनों इकट्ठे चलेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी ना। मीन्स VA एंड VB बोथ आर सेम, VA एंड VB बेटा बोथ आर सेम, VA एंड VB बोथ आर सेम। सपोज V दोनों सेम है, सपोज V, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू, we have to find its value. Listen, put the values. MA UA means 25 into 3, 75. MB UB 10 into 0, 0. MA V, because this is V, both are same, these both are same, we will take common it. MA is 25, MB is 10, V will be taken as common. Why beta? Because both are same, I have taken both are same, and we have to find the value of V. Now it will be 75 is equal to 35 into V, and value of V will be 75 upon 35, and beta its answer will be 15 upon 7। एंड बेटा व्हाट विल बी द यूनिट, आपके पूरे क्वेश्चन में बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे क्वेश्चन में मास किस में चल रहा है, किलोग्राम में, मास शुड बी इन किलोग्राम, लेंथ शुड बी इन मीटर, टाइम शुड बी इन सेकेंड। किलोग्राम, टाइम कहाँ आया, स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी सेकंड का नाम है, टाइम में सेकंड का नाम होना चाहिए, डिस्टेंस में मीटर का, मास में किलोग्राम का। अगर ऐसा है ना तो आपका आंसर भी उसी हिसाब से आएगा, मीटर पर सेकंड। अगर आपका बेटा मास इज इन केजी, लेंथ इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकंड, चलते जाइए, आंसर निकालते जाइए, जो वी की यूनिट आएगी वो भी इसी फॉर्म में आएगी ना, मीटर पर सेकंड। क्लियर, 15/7 मीटर पर सेकंड। बेटा व्हेन आई विल सॉल्व इट देन इट्स आंसर विल बी 2.14 समथिंग, 2.14। बेटा कम क्यों हो गई, पहले तो स्पीड कितनी थी 25, अब कम क्यों होगी पता है,
कुछ मोमेंटम उस कार्ट में भी चला गया। भाई पहले कार्ट रुका हुआ था, कार्ट भी तो चल पड़ा, अब कुछ एफर्ट उसमें चला गया। क्लियर है? सो पहले जो स्पीड थी बच्चे बोए की वो कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड, अब कितनी आ गई 2.14 मीटर पर सेकेंड। कुछ इम्पैक्ट किस में चला गया बेटा? कार्ट में। आप कहोगे सर मेरा नुकसान हो गया, बोए कहेगा मेरा नुकसान हो गया, मेरी स्पीड 3 से क्या रह गई 2.14। तो नुकसान हुआ था मेरे बच्चे, फ़ायदा भी तो हो गया। क्यों? कार्ट जो पहले रुका हुआ था उसकी स्पीड भी तो ज़्यादा हो गई। क्लियर? दिस इज नाउ लिसन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। But same type of question is there as we have done now. Same type of question is there. Suppose a ball B is there. You have to try it by yourselves, okay? And you have to tell me in WhatsApp group that you have done it or not. A ball B is there whose mass is 2 kg. Sorry, 300 gram. It is at rest. It is at rest. A ball A is of mass 500 gram is coming with speed 10 meter per second. Statement will be given to you in this way. A ball A of mass 500 gram is moving with speed 10 meter per second. It collides with another ball of mass 300 gram which was stationary, जो रुकी हुई थी। और बेटा टकराने के बाद दोनों क्या हो गई? एक दूसरे के साथ क्या हो गई? स्टिक हो गई, चिपक गई। बेटा अब चिपक जाएंगी तो बाद में इकट्ठी चलेंगी ना। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA इन आवर केस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA? 500 ग्राम। 500 ग्राम। कन्वर्ट दिस इनटू किलोग्राम। मास मस्ट बी इन किलोग्राम। इट विल बी 1/2 kg. Okay, now tell me what is UA? UA 10 meter per second. It is already length in meter, time in second, 10 meter per second. Okay, but now tell me what is the value of UA? 10 meter, sorry, it is done. What is the value of MB? Gram, convert this into kilogram. What is the value of UB? 0. MB पता चल गया, नॉन 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 नॉन। UA एंड UB आई डोंट नो, V एंड VB आई डोंट नो। एंड यू नो दोनों चिपक गई। चिपकने के बाद इकट्ठे आ गई, मीन्स VA एंड VB बोथ आर सेम एंड दिस विल बी टेकन एज V एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V. क्वेश्चन इज देयर. See, I am speaking again the question. A ball of mass 500 gram is moving with speed 10 meter per second, collides and stick with another ball which was stationary of mass 300 gram. Then they move together. What is the speed of them together? तो बेटा मुझे भी निकालना है. Put the formula and find the answer in the similar way. ये बेटा वही कार्ट वाला क्वेश्चन तो है. बच्चा दौड़ के आ रहा है, कार्ट में जंप कर गया, दोनों इकट्ठे चले, बिल्कुल वही तो क्वेश्चन है. बट याद रखें मास शुड बी इन किलोग्राम. ओके बेटा, यूनिट चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत नहीं होती. ज़रूरत इसलिए होती है कि जो आंसर आएगा ना, उस आंसर में मैं आंख बंद करके आंसर लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ऑलवेज मास वाज इन kg, डिस्टेंस वाज इन मीटर एंड टाइम वाज इन सेकेंड. ओके अच्छा बच्चे, एक बात और सुने. अगर आप कहें नहीं सर हम मास को हमेशा किस में लेंगे? ग्राम में. स्पीड को किस में लेंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड में. टाइम को किस में लेंगे? सेकंड में. सॉरी, मास को ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में. कोई बात नहीं, फिर जो आपका आंसर आएगा ना बेटा, वो पता क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड. ठीक है ना, क्योंकि आप लेंथ को किस में लेके चले हो? सेंटीमीटर में. और टाइम को किस में लेके चले हो? सेकंड में. फिर आपका आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. क्लियर है बेटा? तो ये इस तरह क्वेश्चन, स्टिक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या बच्चा कार्ट में जंप कर गया, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं. और कोशिश करो कि क्वेश्चन को कन्वर्ट करो मास इन लेंथ, मास इन
kg, लेंथ इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। क्लियर। और इन क्वेश्चंस में क्या हुआ, जंप, देखो बेटा एक्शन कहाँ पे हुआ, व्हेन दिस बॉल स्ट्राइक्स विद हेयर, एक्शन हुआ। इन लास्ट क्वेश्चन एक्शन वाज जंप। क्लियर, फाइनल। नाउ बेटा अनदर क्वेश्चन इज देयर, another question is there. This is a different type of question. This is the different type of question. A gun of mass 2 kg, a gun of mass 2 kg fires bullet of mass 50 gram, fires bullet of mass 50 gram with speed 100 मीटर पर सेकेंड। यानी कि गन है जिसका मास कितना है 2 kg, उसने अपने अंदर से एक बुलेट निकाली जिसका मास कितना है 50 ग्राम, विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे जब आप गोली को फायर करोगे तो गन भी तो चलेगी ना पीछे, वो भी तो क्या करेगी, शॉक लगेगा। तो उस गन की स्पीड कितनी होगी, फाइंड द स्पीड ऑफ गन, फाइंड द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। बेटा रिकॉइल का क्या मतलब होता है, रिकॉइल का, गोली आगे गई बुलेट पीछे, उसने शॉक किया पीछे, कितनी स्पीड से किया, इट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ रिकॉइल। नाउ बेटा लिसन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। सपोज बेटा दिस इज गन, इट्स मास इज सपोज 2 kg, बुलेट हैज मास 50 ग्राम। बेटा इस क्वेश्चन में एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन फायरिंग तो एक्शन। पहले क्वेश्चन में कौन सा था, जंप, फिर कौन सा हुआ एक्शन, कोलिजन, बॉल टकराई। इसमें बेटा बताइए फायरिंग क्या है, फायरिंग एक्शन है। तो चलिए एक्शन से पहले टोटल मोमेंटम और एक्शन से बाद टोटल मोमेंटम क्या रहता है, सेम, मीन्स MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। UU वाले एक तरफ, VB वाले एक तरफ। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA। A मीन्स सपोज गन, A मीन गन, B मीन्स बुलेट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MA, 2 kg, A मीन्स गन। नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UA, UA 0, रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MB, bullet, mass of bullet 50 gram, 1/20 kilogram. And what is the value of UB, UB 0, both are at rest। बेटा फायर करने से पहले तो दोनों बुलेट गन के अंदर दोनों रेस्ट पे थे, ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, दोनों रेस्ट पे थे, 0, UB 0। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA, मीन स्पीड ऑफ गन, वो तो मुझे निकालनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ VB, स्पीड ऑफ बुलेट। पुट इन द आंसर, लिसन बेटा, व्हाट विल बी देयर, MAUA 0, MBUB 0, ओके, MAVA, it I have to find out 2VA, MBVB, MB 1/20 into VB 1/20 into 100, it will be 0 is equal to 2VA plus 5,
2a va will be equal to -5, va will be equal to -5/2 meter per second. And beta why minus sign is there? Because velocity of bullet suppose in this side, velocity of gun is in this side, velocity is the vector quantity and minus sign represents the opposite direction. Both are in opposite direction. क्योंकि बेटा जो vb था ना, vb वो प्लस में था. अगर vb क्या है, फायर करने के बाद वेलोसिटी बुलेट की इधर, गन की इधर. इनिशियल तो दोनों की जीरो है. आई एम टॉकिंग अबाउट v फाइनल वेलोसिटीज, both are in opposite direction, so minus is there. Clear है बेटा? This is the situation you have to make by yourselves. A bullet is there in gun. Before firing, both are at rest. Total momentum is 0. After firing, MAVA, A is gun, MA 2 kg. VA I have to find. मुझे बताना है कि गन की स्पीड कितनी होगी ना, रिकॉइल स्पीड, प्लस MB 1/20 kg in kg इंटू VB. बेटा आपको A मानना पड़ेगा, चाहे A आप गन को मान लीजिए, चाहे A बुलेट को मान लीजिए, पूरे क्वेश्चन में आपका वही चलेगा. क्लियर है? वो आपके मानने पे है. सो आंसर विल बी -5/2 मीटर पर सेकेंड. क्लियर बेटा? दिस इज द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम. You have to try such type of questions. बेटा मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ law of conservation of linear momentum. जो हमने अभी टॉपिक किया, इसके बेटा एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कितने एग्जाम्पल हैं? छोटे छोटे एग्जाम्पल है इसके. जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी हमने क्वेश्चन में किया, न्यूमेरिकल में किया, रिकॉइलिंग ऑफ गन. बुलेट आगे जाती है, गन कहाँ जाती है? पीछे. अभी मैंने प्रूव किया था माइनस साइन वाज देयर. वेलोसिटी ऑफ गन जो थी वो उसमें माइनस साइन आया था. क्लियर है? तो बेटा एग्जाम्पल क्या है बेटा? अगर कोई बुलेट से गोली को फायर करते हैं तो गोली उधर जाती है और गन कहाँ जाती है बेटा? पीछे जाती है. ठीक है, रिकॉइल कर जाती है. ओके, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया. तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं. ए when bullet is fired from gun, then gun recoils in backward direction. बेटा ये इसका एग्जाम्पल क्यों हुआ? क्योंकि बेटा अभी हमने ये नियम, ये रूल लगा के ये प्रूव किया था वेलोसिटी ऑफ गन वाज नेगेटिव. ओके, सेकंड बेटा सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द बोट. मैं किसी बोट के ऊपर खड़ा हूँ और मैंने पानी के अंदर खड़ी है बोट, मैं बोट के अंदर खड़ा हूँ और मैं जंप कर जाऊँ इधर, तो बेटा जब बोट होगी ना वो पीछे जंप कर जाएगी. और पीछे मैं बेटा अगर मैं उधर गया हूँ ना जंप करके, बोट पीछे चली जाएगी. ऐसा क्यों? अब इस केस में मुझे मान लो बुलेट, मैं बुलेट हूँ और बोट क्या हो गई? मान लेते हैं गन. बुलेट गन के अंदर है, मैं बोट के ऊपर खड़ा हूँ. अगर मैं उधर जाऊँगा ना तो गन की तरह बोट भी कहाँ चली जाएगी? पीछे. इन द सेम वे यू कैन राइट व्हेन ए मैन जंप्स फ्रॉम अ बोट इन वाटर, then boat moves in opposite direction. Okay, see example.
मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर सच। बेटा सबका एक ही रीज़न है। अब लिसन, किसी बैलून में मैंने हवा भर दी, हवा भर के मैंने उसको छोड़ दिया, नोजल नीचे है, गुब्बारा ऊपर है, ऐसे मैंने छोड़ दिया, तो बेटा क्या होगा, द बैलून विल गो अप। वाई? बिकॉज द एयर इनसाइड इट विल कम डाउन थ्रू नोजल, इट विल कम डाउन। और ये किस बेटा, एयर किसका काम कर रही है, बुलेट का। बैलून किसका कर रहा है बेटा, गन का। बुलेट नीचे, गन ऊपर। ओके, तो अब क्या लिखेंगे, अगर मैं किसी बैलून को भर के नोजल से पकड़ के उसको छोड़ दूं, देन बैलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द नोजल। नोजल इधर है, बैलून उधर जाएगा, नोजल उधर है, बैलून इधर जाएगा। ओके, देन यू कैन राइट व्हेन एन एयर फिल्ड बैलून is released from its nozzle, then it moves in opposite direction to the nozzle, और बेटा अपोजिट बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर एक का साइन पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव। और ये मैं नहीं कह रहा, इसमें हमने एक न्यूमेरिकल किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, तो आपने देखा अगर दो बॉडी पहले रुकी हुई हो, मेरी बात गौर से सुने बेटा, जैसे बुलेट और गन पहले रुकी हुई थी, अचानक चली, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाती है, एक की क्या हो जाती है, नेगेटिव। बोट की बात की, दोनों पहले रुके हुए थे, एक फिर इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑफ बैलून, बोथ वर एट रेस्ट, एयर एंड बैलून। आफ्टर दैट एयर एंड बैलून मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, फाइनल है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की कहते हैं, अगर दो बॉडी पहले रेस्ट में है, ओके, और अगर एक बाद में इधर जाए तो दूसरी इधर चली जाती है। ओके, ये कहता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है, अगर दोनों पहले रुकी हुई हैं, एक अगर इधर गए तो दूसरी इधर। इससे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लिसन, सपोज आई हैव ए पाइप ऑफ वाटर। Okay, initially pipe was at rest and water was at rest. Suddenly water comes out of the pipe. Water goes in that direction. Pipe पीछे जाने की कोशिश करता है, झटका लगाता है। तभी तो बेटा फायर ब्रिगेड वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको पाइप को कैसे पकड़ना है। क्लियर? सो दीज ऑल आर स्पेसिफाइड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब दो बॉडी रेस्ट पे हों, उसके बाद अगर एक इधर जाएगी तो दूसरी उल्टी डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, फाइनल। और एक तो ये बातें हो गई, दो बॉडी पहले रुकी हुई थी। इससे पहले क्या था बेटा, ए बॉल वाज कमिंग, इट स्टिक्स टू अनदर, इट वाज ऑल्सो सिंपल। ओके, इन दिस वे बेटा, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम बेटा, देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, एंड बेटा आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस आई विल गिव यू, एंड यू हैव टू ट्राई योर NCERT क्वेश्चन ऑल्सो, एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू फेस बेटा, देन प्लीज आस्क टू मी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।